Now today we will start with the first lecture of C++, object-oriented programming in C++. So we will be dealing with the theory of object-oriented programming and C++ in the later lectures. Today I'll just give you an overview about what is C++, how is it different from C, and we'll try to write some small programs in C++ so that you can write some programs which you have already earlier written in C, and you can start writing those programs, converting those programs into C++. Okay, so then we'll cover the theory part in coming lectures. So as you know, C++ is C++ operator in C is meant for increasing the value of a variable by 1. Okay, so C was also named as C++ because it is something beyond C. It's something more than C. So earlier it was you can just read out this the history of C++. It was developed by Jan Strossop as an extension to C language, and earlier it was named as C with classes. Okay, earlier it was known as C with classes, and later on its name was changed to C++ because C with classes was a bit longer, so then it was named as C++. So that means all that is there in C is also there in C++, and it has something more beyond C language. Okay, so whatever programming you were doing in C, those programs were structured programs, and you can say you were using modular programming, and the programs were the programming approach you were using was structured programming approach. In that the main module was divided into smaller modules or functions. Okay, but C is C++ is C with classes, means object oriented approach has been added. Object oriented programming has been this concept has been added in C. So C is also known as C with classes or C++. Now what we'll do today is we'll just try to see the difference between a basic C program and a C++ program, so that you can start writing your programs say in C++, and you can just try out some simple examples which you have already done in C. Now यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है that is a simple hello program in C++. Now if you were writing the same program in C language, what differences would be there? What differences would be there? Now here you were writing hash include stdio.h. Okay, सी में आप सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे, जिसमें से जो पहली हेडर फाइल थी वो थी stdio.h एंड दूसरी conio.h. नाउ stdio.h में it stands for standard input output dot h header file, एंड इसमें सारे इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे, मतलब कि printf, scanf, ये सारे फंक्शंस इस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड होते थे. एंड conio.h हेडर फाइल हम किस लिए इंक्लूड करते हैं? जो प्रोग्राम के एंड में हम get ch लगाते हैं या क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करते हैं, उसके लिए वी हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल, बिकॉज हेडर फाइल में जितने भी फंक्शंस हैं दे आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल. नाउ नेक्स्ट हम लिखते थे void main. Now main function हमेशा C का कोई भी प्रोग्राम होगा, it starts with a main function, and return type void का मतलब ये function कुछ भी value return नहीं करेगा, क्योंकि इसे normally functions return a value. So whenever a function does not return any value, you need to mention the return type as void. Void का मतलब होता है nothing. Okay, तो यहाँ पे फिर हम लिखते थे printf. Since it's a simple hello program, तो हम यहाँ लिखते थे printf से यहाँ पे लिखा हमने hello, और सपोज हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है तो हेलो वर्ल्ड लिख करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके सेमीकोलन लगाया, एंड लास्ट में गेट ch.
and we close the program. Now इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप क्या करते थे, इस प्रोग्राम को you were saving it with an extension of C. तो हमने सपोज इस प्रोग्राम को सेव किया hello.c नाम से, देन इसको कंपाइल किया हमने प्रोग्राम को। कंपाइल करते समय क्या होता है, कंपाइलर सबसे पहले तो इट चेक्स योर प्रोग्राम एंटायरली एंड चेक्स इफ द प्रोग्राम इज एज पर द सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज। जिन भी लाइंस में एरर होती है दोज लाइंस आर लिस्टेड आउट, एंड जब तक आप सारी एरर्स रिमूव नहीं कर देते तब तक आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो नहीं क्रिएट होती है। ना ऑब्जेक्ट कोड इज योर मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट कोड ऑफ योर प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में होने के मतलब होते हुए भी इट कैन नॉट रन राइट नाउ। वो अभी रन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ प्रोग्राम का डायरेक्ट कन्वर्जन है मशीन लैंग्वेज में, बट हमारा प्रोग्राम कई सारे फंक्शंस को भी रेफर कर रहा है जो फंक्शंस लाइब्रेरी में होते हैं, सी की लाइब्रेरी में होते हैं। सो दोज फंक्शंस हैव टू बी लिंक्ड टू योर दिस ऑब्जेक्ट कोड, देन ओनली योर प्रोग्राम विल बी एबल टू रन। तो कंपाइलर जो है सी का वो क्या करता है, कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, देन कम्स द लिंकर। लिंकर क्या करता है, आपके प्रोग्राम कोड को, आपके ऑब्जेक्ट कोड को फंक्शन जो सी की लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनसे लिंक करके, जिन भी फंक्शंस की जरूरत होती है उन फंक्शंस को लिंक करके, देन इट फाइनली क्रिएट्स द exe file, and exe file is the file that is actually executed. Once you create the exe file, आप जितने भी applications देखते हो हर application की ज्यादातर exe file होती है that can be executed any number of times from anywhere. So once this exe file is created, this file is created on your hard disk. मतलब ये secondary storage device पे create होती है file, but for a program to run it should be there in the primary memory. तो नेक्स्ट लोडर क्या करता है, लोडर इज अनदर से it is another system software which loads the program this exe file into the primary memory, and then you get the final output. You get the output, and the output in this program would be, you will see the string hello world displayed on the screen. Now ये तो था C का प्रोग्राम। इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो इसका इक्विवेलेंट C++ प्रोग्राम लिखा है। Now why I am writing both the programs side by side, so that you can compare कि C और C++ के प्रोग्राम में कहाँ पे चेंजेस हैं और क्या चेंजेस हैं। Okay, so the first line if you see in this program is, instead of stdio.h you have to include iostream.h. Now details इसकी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, so I will not tell you in detail right now about what are classes and all. तो iostream.h header class में IO stands for input output. तो input और output से related जितनी भी classes हैं वो सारी क्लासेस iostream.h में डिक्लेयर्ड होती हैं। तो उनके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट क्लासेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट is there in the iostream.h. Conio.h is same as in case of C language. Get, ch और clear screen वगैरह functions के लिए हम इसे include करा लेते हैं अपने program में. Void main line is also same. Now if you see, the only difference comes here. वहाँ पे हमने printf function use किया था कोई भी string को screen पर display कराने के लिए। यहाँ पे हमने use किया है cout. Now cout इसको हम प्रोनाउंस करते हैं cout. Cout stands for console output. Okay, console output. Now cout is not a function, remember, it's not a keyword of C++ or C. It is an object of the output stream class. Now classes जब आप डिटेल में पढ़ोगे, then you will be able to understand what are objects. Objects are basically instances of one particular instance of a class. तो cout is an object of the output class, and इसके साथ ये जो आपने ऑपरेटर लगाया है डबल लेस देन साइन का, this is known as the insertion operator. Insertion
ऑपरेटर, डबल लेस देन साइन है, इसका काम है जो भी स्ट्रिंग इसके राइट में लिखी हुई है, इस स्ट्रिंग को आउटपुट डिवाइस पे, जो भी आपकी डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस है विच इज योर मॉनिटर यूजुअली, सो उस आउटपुट डिवाइस पे ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी. सो वट एवर यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, कोई भी आउटपुट आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, कुछ भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है, कोई भी टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आप सी आउट के साथ insertion operator use करोगे, and then within inverted commas you'll write the string which has to be displayed on the screen. Now remember one thing, see out से जब भी कोई string display होती है, it does not put a new line character. That means अगर इसके just बाद आप एक और see out statement use करते हो, it will be printed on the same line. Okay. So this has to be remembered now. So और लास्ट में हमने get ch लिखा है. get ch पहले भी हम पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में. get ch का एक्चुअल काम होता है to get a character from the user without echoing it on the screen. मतलब कि यूजुअली जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हो इनपुट करते समय, वो स्क्रीन पे विजिबल होता है, लेकिन get ch फंक्शन के थ्रू आप एक कैरेक्टर एट अ टाइम गेट कर सकते हो यूजर से विदाउट दैट कैरेक्टर बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. तो उससे होता क्या है, हम यूजुअली इस फंक्शन का यूज प्रोग्राम के एंड में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, सो दैट द आउटपुट कैन बी विजिबल फॉर सम टाइम, एंड व्हेनेवर यू विल हिट एनी पर्टिकुलर की ऑफ द कीबोर्ड, देन ओनली योर आउटपुट स्क्रीन से वापस से हमारा प्रोग्राम एडिटर में खुल जाएगा. So this was about the simple hello program. I wrote this program in C. I wrote this program in C++. अब C++ में जब आप इस प्रोग्राम को लिखोगे तो you have to compile, you have to same आपका ये रहेगा, बस प्रोग्राम को सेव करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, you have to save this program with hello.cpp. Okay. Now CPP extension, जब भी आप प्रोग्राम C++ में लिखते हो तो you give the program an extension of CPP, and whenever you write a program in C you give it an extension C.C. अब ये extension अलग देना क्यों जरूरी है, you should understand this, क्योंकि से जब भी आप टर्बो C++ आपकी मशीन पे इंस्टॉल्ड होता है, it supports C also. बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है. तो C++ जब भी आप अपनी मशीन पे इंस्टॉल करोगे तो C++ में C की प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल है. तो बाय डिफॉल्ट जब आप फाइल को सेव करते हो, इट गिव्स एन एक्सटेंशन ऑफ CPP, बट इन द सेम से जो भी आपका आप कंपाइलर यूज कर रहे हो, उसमें दो कंपाइलर्स होते हैं, एक C++ का और एक C का. अब how will the system know which compiler should be used when? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, by seeing the extension of your program. If you have given a program extension as .c, जब भी आप कंट्रोल F9 करोगे प्रोग्राम को रन करने के लिए, द टर्बो C++ को पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम C में है, तो इट विल यूज the C compiler for compiling your program. And if you give an extension of CPP, then in that case the C++ compiler will be used for compiling your program. क्योंकि से जो errors हैं, syntax errors वगैरह हैं, वो किसके हिसाब से चेक की जाएंगी, it will depend on in which language you are writing your program. So just to make a difference, just to tell कि ये program C में लिखा है या ये C++ में लिखा है, you have to give the appropriate extension. So whenever you are writing a program in C++, don't forget to give it an extension of CPP. उसके बाद सारे steps वही रहेंगे. सबसे पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे. कंपाइल होने के बाद errors if any will be listed out. उन एरर्स को रिमूव करने के बाद जब आप प्रोग्राम को दोबारा सेव करके कंपाइल करोगे, देन एन ऑब्जेक्ट फाइल विल बी क्रिएटेड. ऑब्जेक्ट फाइल लिंक होने के बाद exe बनेगी, और exe will be loaded into the primary memory, and you will see the same output on the screen, that is hello world will be displayed on your screen. So this is a simple, very simple, the smallest program that you can write in C++. Now next यहाँ पे प्रोग्राम जो दिया हुआ है, it is just trying to tell you कि you can use multiple cout statements one after the other.
बट जब भी आप ये प्रोग्राम लिख करके रन करोगे, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि सी आउट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन, मतलब यहाँ पे आपने दो अलग अलग लाइंस में सी आउट लिखा है, यू मे गेट अ फीलिंग कि आपने दो अलग अलग लाइंस में सी आउट स्टेटमेंट यूज किया है। फर्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड लिखा है और सेकेंड लाइन में आपने लिखा है वन आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। सो यू माइट बी हैविंग अ फीलिंग कि आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि हेलो वर्ल्ड will be displayed on the first line and I am learning C++ will be displayed in the second line. But ऐसा नहीं होगा, this will not happen because C out क्या करता है, simply वो string को display कर देता है screen पे and the cursor is not shifted or pushed to the next line. ठीक है, तो अगर आपको ये आउटपुट दो अलग अलग लाइंस में चाहिए है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to insert a new line character wherever you want to insert a new line. Okay, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के लास्ट में इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखी है आपकी हेलो वर्ल्ड, उसके साथ हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या तो बैकस्लैश एन लगा दें। बैकस्लैश एन सी में क्या करता था, इट वाज एन एस्केप sequence which was introduced to insert a new line. ठीक है, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है इस कैरेक्टर के वजह से। तो या तो आप हेलो वर्ल्ड के लास्ट में बैकस्लैश एन लगा देंगे न्यू लाइन कैरेक्टर, या आप क्या कर सकते हो, आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के पहले बैकस्लैश एन लगा सकते हो। सो बोथ विल गिव द सेम आउटपुट। दोनों ही केस में से दोनों में से एक किसी में न्यू लाइन कैरेक्टर लगाने से हेलो वर्ल्ड एंड आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस विल बी डिस्प्लेड ऑन two different lines. Now this was the C style of giving a new line. Okay, C++ में एक और तरीका है जिसके थ्रू हम न्यू लाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। So I'll just tell you about that. C++ में there's a manipulator, this end L. End L is a manipulator. ये क्या करता है, this is again not a keyword, it is not a function, nothing, it is a manipulator. ये क्या करता है, ये एक सिंपल न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता है जहां पे इसे लिखा जाता है। सो दैट मीन्स सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड अगेन इंसर्शन ऑपरेटर एंड एंड एल। एंड एल से क्या होगा, आपकी जो भी आउटपुट डिवाइस है उसमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले आपका जो आउटपुट प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद कर्सर यहाँ पे था, बट because of this end L manipulator the cursor will be shifted to the beginning of the second line. Then second line में it will print I am learning C++. So this is another way of giving a new line, introducing a new line. Now you can use either of the two, whichever you find comfortable. Okay, so these are the two ways of giving a new line character in your string, or you can say multiple lines पे output print कराने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी method use कर सकते हो. Now next is comments. You know what are comments, why they are given. Comments are just they just are used for documenting your program. Comments वाली line कभी भी जो है वो execute नहीं होती हैं. They are just written. They are just written so that कोई भी आपका प्रोग्राम या just describing your program basically. ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो you know how you have written your program, what it is doing, how it is doing. But जब भी कभी आपका लिखा हुआ प्रोग्राम कोई और खोल के देखता है तो maybe he is not very comfortable, उसको नहीं उतना समझ में आ रहा है कि कैसे ये प्रोग्राम लिखा गया है या क्या करा जा रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। तो उस केस में ये क्या करता है कि कमेंट्स देने से योर प्रोग्राम बिकम्स डिस्क्रिप्टिव, मतलब बाय गिविंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन योर प्रोग्राम यू कैन डिस्क्राइब योर प्रोग्राम।
so that anyone who sees your program he can understand it easily. Now comments दो तरह के होते थे C में, यहाँ भी वही दो तरह के comments होते हैं, single line comment and multiple line comment. Single line comment कैसे देते थे हम? इस तरह से डबल स्लैश के बाद जो भी कुछ आप लिखते हो, all that till the end of the line is treated as a comment. And सिंगल लाइन कमेंट आप या तो बिगिनिंग में दे सकते हो लाइन के, या आप एक एग्जीक्यूटेबल लाइन के आगे भी दे सकते हो. सपोज मैंने प्रोग्राम के सपोज गेट ch के आगे यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया, दिस इज अ कमेंट. Now single line comment can be given like this also. जहां से शुरू करोगे वहां से लेके end of line तक everything will be treated as a comment, and comment lines are ignored by the compiler. Remember, कभी भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो कमेंट वाली लाइंस को सिंपली कंपाइलर इग्नोर करता है. ठीक है, so they are just for the convenience of the user या द प्रोग्रामर खुद अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए, जिससे कि वो प्रोग्राम इजीली कोई भी समझ सके, लॉट ऑफ कमेंट्स दे देता है. बट दोज लाइंस आर नेवर कंपाइल्ड, दे डू नॉट ऐड टू द say executable size of the program does not depend on the number of comments you are given in your program. So you can use lot of comments in your program to make your program more say descriptive. Now multiple line comments देने के लिए हम क्या करते हैं, all text between these two pair of characters is treated as a comment. जैसे कि यहाँ पे आप देखो, कई बार होता है कि बहुत सारा हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है, आई वांट टू डिस्क्राइब अ फंक्शन, तो हो सकता है वो कमेंट हमारा 2 या 4 लाइन या 6 लाइन तक जा रहा है, तो देन वी कांट गिव से 6 सिंगल लाइन कमेंट्स. तो वी कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ अ कमेंट विथ स्लैश एंड एन एक्स्ट्रिक साइन, एंड जब भी हमारा कमेंट फिनिश करना होता है तो यू एंड इट विथ अ स्टार एंड अ फॉरवर्ड स्लैश. So anything between these two pair of characters will be treated as a comment. So these are single and multiple line comments. Again they were there in C also. Then again C++ के variables, C++ में भी वही सारे variable types होते हैं. You have int, you have float, you have char. Int is used for storing whole numbers, float is used for storing real numbers, char is used for storing characters. इनके वेरिएंट्स होते हैं. इंट का एक वेरिएंट होता है लॉन्ग. जब आपको लॉन्ग बड़े होल नंबर स्टोर करने हो जो इंट में नहीं आ पा रहे हैं, तो यू कैन यूज द लॉन्ग डेटा टाइप. एंड फ्लोट का एक वेरिएशन होता है आपका डबल. जब आपका जो भी रियल नंबर है वो बहुत हाई प्रिसिशन वैल्यू है and it cannot be stored in a float type variable, then you can use its variant, that is double data type. And then you have char, which is used for storing a single character. Okay, now इनके कितनी बाइट्स इनको अलॉट होती हैं. We are talking about DOS based C++. तो char को 1 बाइट अलॉट होती है in the memory. Int 2 bytes. Window based में these figures change. Okay, so I am talking about DOS based C++. Long में 4 bytes होते हैं allot long variables को. Float variables को 4 bytes allot होते हैं in the memory, and double को 8 bytes allot होते हैं memory के. So these are the different data types and how much memory is allocated to those variables has been given here. Variables declare करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई भी variable को declare करते थे C में. There's no say difference in declaring variables in C++. And आप जैसे int my num is equal to 15, इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, एक my num नाम का variable declare कर रहे हैं integer type, and they are assigning a value, initializing the value by 15.
Now if you want to display the value of that variable, जैसे string की value display कर सकते हो, आप simply cout के साथ insertion operator लगा के variable का नाम लिखोगे, the value of the variable will be displayed. Okay, then यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स. नाउ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे इन्हें दो वेरिएबल्स लिए x एंड y, उनको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5 एंड 6, सम कैलकुलेट किया, सम वेरिएबल में x एंड y को ऐड करा एंड लास्ट में सम को डिस्प्ले करा दिया. ओके, तो इसके थ्रू आप दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिख सकते हो. नाउ आइडेंटिफायर्स. व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? मतलब आइडेंटिफायर्स आर यूज फॉर आइडेंटिफाइंग समथिंग. मतलब किसी भी चीज को एक नाम जब आपको देना होता है, सपोज आप फंक्शंस क्रिएट करते थे सी में या आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, तो ये सारों को एक आप आइडेंटिटी देते हो, एक अलग सा नाम अलॉट करते हो. दे ऑल आर नोन एज आइडेंटिफायर्स. नाउ आइडेंटिफायर्स के अपने कुछ मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स इन सी एज वेल एज सी प्लस प्लस. वेरिएबल्स को नाम देते समय you have to remember certain things. The rules are same that were there in C. Names can contain letters, digits and underscore. No other special characters are allowed. No question mark, no asterisk sign, nothing is allowed in the variable names can contain letters, digits and underscores, and no other characters, special characters are allowed in a variable name. Names must begin with a letter or an underscore. Names, variable names cannot begin with a digit. Okay, so the starting character should be any alphabet, any character or an underscore. You can't start a variable name with a digit. And variable names are case sensitive. That means uppercase and lower case को दोनों को अलग ट्रीट किया जाता है. And white spaces are not allowed in between, and special characters are also not allowed in between a variable name. So these rules are same as we had learned in C. Now next is constants. Now variables are something which can change the value from time to time. कई बार हमें प्रोग्राम में ऐसा होता है कि we need to create some variable, but we don't want to change its value. We want to keep its value as same or constant. So you can also create constants in C, like C++, like you can do in C. Just you have to add the keyword const before declaring a variable. जैसे जहां भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसके जस्ट पहले आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लोगे, तो उससे द कंपाइलर विल मेक दैट वेरिएबल अ कांस्टेंट. दैट मींस उसकी वैल्यू को रीड कर सकता है, वो यूज कर सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू को आगे चेंज नहीं किया जा सकता है. सो कई बार होता है, जैसे सपोज पाई कांस्टेंट हमें डिक्लेयर करना है या कोई और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आई डोंट वांट कि गलती से भी हमारे प्रोग्राम में चेंज हो सके, तो उनको हम कॉन्स्टेंट्स अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं. सो कॉन्स्टेंट्स आर सम वैल्यूज व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम. Now next is how to get input from the user. अभी हमने देखा how to display the output. Now you can't write any program without any taking any input from the user. तो इनपुट के लिए हम C में यूज करते थे scanf फंक्शन. scanf फंक्शन की मदद से आप कोई भी वैल्यू इनपुट करा सकते थे यूजर से. नाउ उसका इक्विवेलेंट C++ में होता है Cin. Cin stands for console input, and उसके साथ जो ऑपरेटर आप यूज करते हो that is double greater than sign, and this is known as the extraction operator. Cout के साथ जो ऑपरेटर यूज करते थे that was insertion operator, and Cin के साथ जो ऑपरेटर यूज करते हो double greater than sign, that is known as the extraction operator. Now Cin के लिए हम कैसे लिखते हैं? Cin double greater than sign, यानी कि extraction operator और variable का नाम. It gets the user input from the keyboard. So Cin is used for inputting the value from the user. Now it's more easy than it was in C,
मोर इजी देन इट वाज इन सी, क्योंकि सी में क्या होता था, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देना पड़ता था कि अगर इंटीजर वैल्यू है तो %d, अगर फ्लोट वैल्यू है तो %f। यहाँ पे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी इन के साथ बस सिर्फ आपको वेरिएबल का नाम बताना होता है, जैसा भी वेरिएबल है उस टाइप की वैल्यू को वो इनपुट कर लेता है। सो cin is the equivalent of scanf in C. नाउ आगे यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है हमने कि दो नंबर्स को ऐड करने का, जैसा कि आपने पहले भी लिखा होगा। दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहले मैसेज प्रिंट कराया टाइप अ नंबर, सी इन डबल ग्रेटर देन साइन x, तो x की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई। देन उसके बाद हमने क्या किया, टाइप अनदर नंबर मींस सेकंड वैल्यू इनपुट कराई यूजर से, सेकंड वैल्यू इनपुट कराई यूजर से, एंड सम कैलकुलेट किया x प्लस y, एंड लास्ट में सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम टू इनपुट टू वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, add those values and print the sum. ओके, नाउ इसको यूज करके आप कोई भी इनपुट कोई भी प्रोग्राम में इनपुट कर सकते हो। एंड दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिफरेंट डेटा टाइप्स, उनकी साइज कितनी होती है, कितनी बाइट्स उनको एलोकेट होती है, एंड किस टाइप की वैल्यूज को वो स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड। फ्लोट और डबल कब यूज करते हैं, जब आपको लो प्रिसिजन वैल्यू यूज मतलब हाई प्रिसिजन वैल्यू यूज करनी होती है, तो फ्लोट अलाउज ओनली 6 और 7 डेसिमल डिजिट्स, मतलब 6 या 7 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल अलाउ करता है फ्लोट। पर अगर आपको बहुत ही छोटी या बहुत बड़ी वैल्यू कोई स्टोर करनी है, यू वांट अ प्रिसिजन अप टू 15 डिजिट्स, देन यू यूज डबल वेरिएबल। ओके, तो डबल और फ्लोट कब यूज करना चाहिए, जब आपको वेरी हाई प्रिसिशन वैल्यूज को स्टोर करना है, देन यू कैन यूज डबल, अदरवाइज फ्लोट से भी आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। Now, this was a brief say ब्रीफली मैंने बताया आपको कि C++ में आप प्रोग्राम में एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे लिख सकते हो, हाउ टू इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर, हाउ टू डिस्प्ले सम आउटपुट, क्योंकि से बेसिकली यही दो चीजें हमें मेनली चाहिए होती हैं। रेस्ट ऑल लूप्स जो हैं, जो इफ कंस्ट्रक्ट्स हैं, केस कंस्ट्रक्ट हैं, एवरीथिंग इज सेम एज दैट वाज देयर इन C. The best part of C++ is कि उसका syntax जो है, it is exactly same as C language, so you need not worry about that. आप C में जैसे प्रोग्रामिंग करते थे, वो सारी चीजें जो C में चलती थी वो यहाँ भी चलेंगी। सो इनिशियली जब तक कभी हम क्लासेस का कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, तब तक C++ में प्रोग्रामिंग करने में आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो से यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, टिल वी लर्न सम थ्योरी पार्ट इन फर्दर लेक्चर्स, आपने जो भी सी में सिंपल प्रोग्राम्स लिखे हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को यू जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू C++। आई जस्ट पुट अ स्मॉल से असाइनमेंट काइंड ऑफ थिंग, जिसमें मैं कुछ फ्यू क्वेश्चंस सेंड कर दूंगी आपको, some very basic questions like finding the factorial of a number, which you've already written in C, and you can just try out those all programs you've written in C, just try to convert them into C++ and run and see the output. तो इससे क्या होगा, आपको C++ में प्रोग्राम लिख के रन करना आ जाएगा, and by the time we'll learn further topics in the coming lectures. So I'll end the class here. Please go through this and start writing the programs in C++.